Hello everyone, welcome back to my channel PathoStroke. In our today's video, we're going to deal with normal values and red cell indices. So if you want to see my last videos, the link is given below in the description box. Let's start our video without wasting the time. Normal values and red cell indices. Before starting the video, it is very much important to clear up your minds that these values make the very important value in the findings of anemia. For example, if you know the correct value of PVC, hemoglobin, MCH, MCV, then you can only correctly interpret it that which type of anemia it is, whether be iron deficient, whether be megaloblastic, aplastic or etc. If you know these values correctly, then also you can correctly interpret the correct disease. Interpreting the correct values, then only you can further go for the correct treatment and saving the life of the patient. We'll consider the range of the normal red cell count. That is, in men 5.5 plus minus 1 into 10 power 12 per liter, and B is women 4.8 plus minus 1 into 10 power 12 per liter. Next comes the PCV, packed cell volume or hematocrit value. It is the volume of erythrocytes per liter of the whole blood. That indicates the proportion of plasma and red cell, means वॉल्यूम ऑफ द रेड सेल्स जो कि प्रेजेंट हो पूरे रेड होल ब्लड में, वो इंडिकेट करता है पीसीवी, यानी कि कितनी रेड सेल्स प्रेजेंट हैं एक अमाउंट ऑफ ब्लड में. दैट इंडिकेट्स बाय पीसीवी, दैट इज हेमेटोक्रिट वैल्यू. फॉर एग्जांपल, in men it is 40 to 54% and in women it is 37 to 47%. These are the normal values for PCV. Important value is hemoglobin count. In men it is 13 to 18 gram per dl. In women it is 11.5 to 16.5 gram per dl. Now based on these two values, the red cell indices or the absolute values can be calculated. इसीलिए हमें इन दो वैल्यूज़ की नॉर्मल काउंट को पता होना बहुत ज़रूरी है, पीसीवी और हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसके ही आगे हम आगे अपनी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टार्ट विथ mean corpuscular volume MCV can be calculated by putting PVC divided by RBC count in millions multiplied by 10. In this aspect we can take out what is MCV, and the normal range is 77 to 93 femtoliter. What is the significance? It is the measure of average volume of red blood cell and it denotes the average size of RBC. Average size का डिनोशन कौन करता है? MCV. यानी कि MCV की वैल्यू के थ्रू हमें पता लगता है कि जो साइज है रेड ब्लड सेल का वो किस टाइप का है. इफ़ द MCV वैल्यू कम्स लो, अगर MCV की वैल्यू कम आती है तब हम उसे नाम देते हैं माइक्रोसिटिक, यानी कि जो साइज है रेड ब्लड सेल का इट इज़ स्मॉल, टू स्मॉल. व्हेन द MCV वैल्यू कम्स हाई, दैट इज मोर देन 93 femtoliter, देन इट इज कॉल्ड एज मैक्रोसिटिक. दैट मीन्स द साइज ऑफ the size of red blood cells is too big. When it comes normal, that is between the range of 77 to 93 femtoliter, it is interpreted that the size of red blood cells are normal, just right cells. साइज़ के थ्रू हम क्या पहचान सकते हैं? फॉर एग्जांपल, कई बार माइक्रोसिटिक अगर आपको मिलती है एमसीवी की वैल्यू, ये ज़्यादातर डिनोट करती है आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. और अगर माइक्रोसिटिक हो जाए कभी साइज आरबीसी का, तो ये ज़्यादातर आपको डिनोट करती है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, दैट इज़ ड्यू टू द फोलेट एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसी. अब क्या होता है, ये वैल्यू अकेले तो इम्पॉर्टेंट होती नहीं है. एमसीवी की वैल्यू इट इज़ नॉट फर्दर अकेले इम्पॉर्टेंट नहीं होती, इसके साथ और भी वैल्यूज़ जुड़ती हैं, MCH, MCHC. इन सब को मिला के हम एक टाइप ऑफ डिजीज़ और एक टाइप के एनीमिया या किसी भी टाइप की डिजीज़ को हम कंसिडर कर पाते हैं. पहले हम जब इन सारी वैल्यूज़ को पढ़ लेंगे तब हम इनके सबको एक साथ मिला के बता सकते हैं कि किस टाइप ऑफ एनीमिया या किस टाइप की डिजीज़ इंटरप्रेट की जा सकती है. नंबर सेकेंड इज मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन. मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन जो होता है ये अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन बताता है इन एन एवरेज रेड ब्लड सेल, यानी कि एक इंडिविजुअल रेड ब्लड सेल में कितना अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उसका डिनोशन पता लगाता है हमें कौन? MCH. इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है इट इज़ 27 to 32 पिकोग्राम. ओके, तो इसको निकालने का क्या तरीका होता है? दैट इज हीमोग्लोबिन डिवाइडेड बाय रेड ब्लड सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 10. इसके थ्रू हम मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन वैल्यू निकाल सकते हैं. अब आते हैं इसकी रेंजेस. अगर ये लो हो, अगर MCH की जो वैल्यू है अगर वो लो हो तो क्या डिनोट होगा? ऑब्वियसली क्या डिनोट होगा कि पर सेल में, हर इंडिविजुअल रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन कम है. अगर हीमोग्लोबिन कम है तो क्या डिनोशन आएगा? पेल दिखाई पड़ेगा आपको रेड ब्लड सेल. एवरी रेड ब्लड सेल विल बी सीन पेल. तो ज़्यादातर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये किस केस में हो सकता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. कनेक्ट करके पढ़ते चले जाएंगे. जैसे अभी हमने पीछे देखा था कि MCV की जो माइक्रोसिटिक की वैल्यू आती है,
अगर माइक्रोसिटिक वैल्यू आती है तो भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डिनोट होता है, और अगर MCH भी लो हो जाए साथ में तो भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। क्योंकि अगर एक वैल्यू के थ्रू हम नहीं कह सकते ना कि इट इज़ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जब ये सारी वैल्यूज़ ही इस टाइप का डिनोशन देंगी तब हम कहेंगे करेक्टली कि ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। तो अब तक इन दो वैल्यूज़ के थ्रू हमने पता लगाया कि अगर MCH और MCV दोनों ही लो हों तो आपको इंडिकेशन आता है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के चांसेस हैं। अब सेकेंड वन इज़ हाई MCH। अगर हाई MCH आ जाए तो ये डिनोट करता है कि दैट इज़ देयर इज़ फोलेट और विटामिन B12 डेफिशिएंसी, दैट इज़ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। अब हम फिर कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं कि MCH की वैल्यू जब हाई हो और साथ ही साथ आपका MCV हाई हो। MCV हाई का मतलब हो गया मैक्रोसिटिक हो, अगर यानी कि साइज ज़्यादा बड़ा हो आपके सेल का, तो इन दोनों वैल्यूज से क्या इंटरप्रेट होता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। तो जब हम इन वैल्यूज़ को ईजिली समझ लेंगे, ईजिली पढ़ लेंगे, तो हमारे लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा डायग्नोसिस कि किस टाइप का एनीमिया है या किस टाइप की डिजीज़ है हमारी बॉडी में, एंड इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नंबर थर्ड कम्स द मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। हमें डिफ्रेंशिएशन ध्यान रखना है MCH और MCHC में। जो MCH था वो डिनोट करता है इंडिविजुअल रेड ब्लड सेल, यानी कि इंडिविजुअल रेड ब्लड सेल में कितना हीमोग्लोबिन है। लेकिन जो हमारा मेन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है ये डिनोट करता है कि एवरेज कंसंट्रेशन क्या है हीमोग्लोबिन में एवरेज रेड ब्लड सेल्स में, यानी कि टोटल RBCs में एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन की क्या वैल्यू चल रही है, उसका डिनोशन आपको मेन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन की वैल्यू से पता लगता है। तो जो नॉर्मल रेंज होती है उसकी दिस इज 30 to 35 ग्राम पर DL, और इसको निकाला कैसे जा सकता है, बाय हीमोग्लोबिन डिवाइडेड बाय पैक्ड सेल वॉल्यूम इनटू 10। इसके थ्रू हम इस फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं MCHC फॉर। अब इसके बाद आता है कि अगर ये नॉर्मल है, MCHC की वैल्यू अगर नॉर्मल है दैट मीन्स बिटवीन 30 to 35 है, दैट मीन्स आपका जो वैल्यू आएगी हम उसे नॉर्मोक्रोमिक कह सकते हैं आपके रेड ब्लड सेल को, यानी कि राइट अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन ऑल द एवरेज रेड ब्लड सेल्स। अगर आपको हाइपोक्रोमिक आता है यानी कि द वैल्यू इज लेस, MCHC वैल्यू इज लेस, that means hypochromic means it is pale, it is very less amount of hemoglobin is present in average red blood cells। तो हमने अभी ऊपर देखा था कि अगर MCV कम आए और MCH भी कम आता है तो क्या हमने डिनोट किया था कि उसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। सिमिलरली इधर भी वही होगा, जब लो है यानी कि MCHC यानी कि ऑल ओवर द रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन कम है तो वो हाइपोक्रोमिक होगा ओब्वियसली, यानी कि MCHC की वैल्यू लो है। सिमिलर तो फिर क्या होगा, जब ये तीनों ही चीज़ें हमें लो दिखेंगी MCHC, MCV एंड MCH, तो इन सब से क्या डिनोशन आता है, और स्ट्रॉन्ग डिनोशन बढ़ गया। अभी तक हमें दो वैल्यूज़ थी, जब तीसरी वैल्यू ने भी यही इंडिकेट कर दिया कि ये भी लो है यानी कि हाइपोक्रोमिक है, तो फिर क्या पता लगा, इट इज़ अगेन और स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिला कि यहाँ पर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। MCV को हम कहेंगे माइक्रोसिटिक, MCHC को कहेंगे हाइपोक्रोमिक, यानी कि माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अगर वैल्यूज़ आती हैं तो वो इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्गली आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और अगर नॉर्मल होता है, कई बार नॉर्मल भी होता है, तो वो मैक्रोसिटिक एनीमिया की कंडीशन में आपको MCHC की वैल्यू नॉर्मल दिखाई पड़ती है। मैक्रोसिटिक एनीमिया कब होगा, जब MCV की जो वैल्यू होगी, MCV की वैल्यू जो होगी वो हाई होगी ऑब्वियसली, यानी कि जो साइज़ है रेड ब्लड सेल्स का दैट इज़ वेरी मच बिग। तो अगर साइज़ बिग है तो उसमें हीमोग्लोबिन कम हो या ज़्यादा हो या राइट अमाउंट पे, तो उस पर डिपेंड नहीं करता ना। तो अगर हीमोग्लोबिन राइट अमाउंट पे है बट आपका MCV हाई है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, आपको मैक्रोसिटिक एनीमिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। दैट मीन्स MCV हाई एंड MCHC इज नॉर्मोक्रोमिक। ओके, फोर्थ इंपॉर्टेंट वैल्यू इज रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ RDW। इससे क्या मेजर होता है, इट मेजर द वेरिएबिलिटी इन द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल, यानी कि कितना साइज में वेरिएशन है उस चीज़ का डिनोशन हमें रेड RDW से मिलता है। जो इसकी नॉर्मल रेंज होती है दैट इज़ 11.5 to 14.5%। सो अगर जो RDW आपका हाई आता है तो उस कंडीशन को हम एनिसोसाइटोसिस कहते हैं। एनिसोसाइटोसिस का मतलब होता है वेरिएशन इन साइज़। तो अगर वेरिएशन इन साइज़ की बात हमने MCV में भी देखी थी, तो अगर वेरिएशन इन साइज़ में मैक्रोसाइटोसिस देखने को मिलता है आपको, तो यानी कि इंक्रीज इन साइज़ है।
माइक्रोसाइटोसिस देखने को मिलता है, दैट मीन्स डिक्रीज इन साइज है। इन डाइमॉर्फिक कंडीशन जब होती है, जब मैक्रोसिटिक एंड माइक्रोसिटिक दोनों ही कंडीशंस हमें देखने को मिले। अब हम इन सब चीज़ों से क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, फॉर अगर RDW की वैल्यू हाई आती है और मैक्रोसाइटोसिस देखने को मिलता है इंक्रीज इन साइज, तो हम डिनोट कर सकते हैं कि देयर में बी चांसेस ऑफ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। और अगर माइक्रोसाइटोसिस देखने को मिलता है दैट मीन्स डिक्रीज इन साइज, दैट मीन्स ये डिनोट करता है या तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, लिवर डिजीजेस, किडनी डिजीजेस और आपका कैंसर्स हैं। तो ये इन सब का डिफ्रेंशिएशन करने के लिए और भी डिफरेंट टेस्ट होते हैं जो इन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सिर्फ इस बेसिस पे हम नहीं कह सकते कि आपको एनीमिया ही है। मॉर्फिक कंडीशन होती है RDW की, उसमें आपको कहाँ देखने को मिल सकती है, ये मिल सकती है आपको ब्लड सेल ट्रांसफ्यूजन्स के केसेस में या फिर माइलोडिस्प्लेजिया के केस में, और एनी रिफ्रैक्टेड एनीमिया जहाँ पे सिड्रोब्लास्ट की कंडीशन देखने को मिलती है। इन सब जगहों पर आपको RDW की वैल्यू डायमॉर्फिक देखने को मिल सकती है। ना हम क्या कंक्लूजन देख सकते हैं यहाँ पर इन सारी वैल्यूज़ को सीखने के बाद। फॉर सपोज एन एग्जाम्पल, इफ़ योर MCV मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम इज़ लो, दैट इज़ इट इज़ माइक्रोसिटिक, एंड जो आपका RDW है वो आपको हाई मिल रहा है, एंड MCH की जो वैल्यू है वो भी लो है, और MCHC की वैल्यू है वो भी लो है, दैट इज़ हाइपोक्रोमिक। अगर ये सारी कंडीशन आपने को देखने को मिलती है तो हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, दैट इज़ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। ठीक है, तो अगर ये सारी वैल्यूज़ हमें देखने को मिलती है तो हम ऑब्वियसली बता सकते हैं कि यहाँ पर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल कि MCV की वैल्यू हाई है, दैट मीन्स मैक्रोसिटिक, MCH की वैल्यू भी हाई है यानी कि मेन कॉर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन वैल्यू इज़ ऑल्सो हाई, एंड MCH की जो HC की जो वैल्यू है वो नॉर्मल है, और RDW इंक्रीज है। तो ये क्या इंटरप्रेट कर सकता है, दैट मीन्स इट इज़ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, दैट मे बी ड्यू टू आपका फोलेट डेफिशिएंसी और विटामिन B12 डेफिशिएंसी। इन दोनों की डेफिशिएंसी से आपको मेगलोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिल सकता है। बट अगर हम थर्ड एग्जाम्पल देखें हमारा, जहाँ तो जो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं वो हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको हेमोलिटिक एनीमिया है, कहीं बोन मैरो फेलियर है, या फिर एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस है। इन सब कंडीशंस में हम नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक वैल्यूज़ देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रेड ब्लड सेल में कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है। यहाँ पे जो कॉज है वो आउटर टू द रेड ब्लड सेल्स है, यानी कि कोई भी आपको हेमोलिटिक एनीमिया हो गया और एनी ट्रॉमा कंडीशन है कोई भी, उस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। और एनी कंडीशन सच एज द हेमोलिटिक, वही हेमोलिटिक एनीमिया के अंदर आएगा ये, तो या बोन मैरो फेलियर है, ये सारी कंडीशंस में आपको ये वैल्यूज़ देखने को मिलती हैं। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड दीज वैल्यूज़ करेक्टली, तो इस वजह से आप जो करेक्ट इंटरप्रिटेशन निकालेंगे, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट। Thank you so much for giving me your time. Please like, comment, subscribe and share my videos if you really like them, and do follow me on my Instagram ID pathostroke.